Hello student, thank you so much to everyone. First, appreciate me, encourage me, help me to make a next video on the next topic. So student, I'm here to make a new video which is based on ray optics, one shot for lens. Student, ray optics, one shot for lens, right? So basically this is what first topic in lens, nomenclature of lens, right? Student, this is nomenclature of lens, right student? So this is a nomenclature. So this is thin lens, this is thin lens, this is thick you can say biconcave lens, this is thick lens, this is thick lens, and this is biconvex lens, यूजुअली क्वेश्चन जो भी आएंगे वो टेक्निकल वर्ड से आएगा, लाइक देयर आर बाइकॉन्वेक्स लेंस, a lot of information given over there, object size, object length, image distance and resolve, and finally have to find focal length. तो बेसिकली आप इसको यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हो, मतलब नाम याद होने, यू मस्ट शुड रिमेंबर व्हाट इज द थिन लेंस, व्हाट इज बाइकॉन्वेक्स लेंस, what is a thick lens and what is biconvex. This is a nomenclature of the lens. So now I am going to tell you basic formula, right? So you can say basically lens formula, right students? So before going to tell lens formula, this is also important. This is what is the topic, basically lens formula, right student? So basically 1 upon v minus 1 upon u, which is equals to mu l upon mu s minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. एक्चुअल में दिस इज द फॉर्मूला. अब इनको अलग अलग वे में हम मतलब इसको कर सकते हैं, राइट? सो फॉर सपोज यू कैन से दिस इज व्हाट केस इफ ऑब्जेक्ट is at infinity. If object is at infinity, then image is at focus. So this will become what? Basically 0. So this is what? This formula happen and gets changed 1 upon f is equals to mu l upon mu s minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2. So this is what? This is lens maker formula. This is lens maker formula. This is lens maker formula, right? Okay, this is lens maker formula, right students? So what is the lens formula? Now this is equivalent to this. So lens formula is what? Basically 1 upon v minus 1 upon u, which is equals to 1 upon f. So this is what? Most useful. This is the lens formula. This is a lens maker formula, or you can say this is a general formula for lens, right? So take a screenshot, right student? इसकी बेस्ड numerical में already I have uploaded, right? So you can find formula, or you can say numerical based on lens maker
physics point by BK sir, definitely will get, right? Okay, so basically now I'm going to moving ahead on the next topic. So what is the next topics and formula? So this is what basically combination of lengths. Student, combination of lengths, right? Just say this is what there are two biconvex lens, say power P1 and power P2, right? Next focal length F1 and F2. So what will happen? Basically हमें equivalent निकालना है. So इनके बदले you can replace with the single ray lens. So this is what you can say, students, power equivalent or force equivalent. So basically I'm going to tell you power of the lens, right? Power of the lens. So this is P is equals to 1 upon F. P is equals to 1 upon F. But remember one thing, F with sign मीन्स आपका जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, राइट? एंड व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर? यहाँ पे पावर की यूनिट वॉट नहीं होगी, दिस इज आईज पावर, राइट? लेंस की पावर है. सो यू कैन से यूनिट ऑफ पावर एज डायप्टर. Unit of power is, student, this is what basically diopter. So take a screenshot. अभी आपका ये टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है, I'll tell, but first take a screenshot. I need a space, right? Good to everyone. So next, power of the mirror, right? Power of the mirror, right, student? So this is P is equals to minus 1 upon F. Again one things, F with the what? Sign convention, right? Positive or negative. So this is power of the lens and power of the mirror. So basically I am going to tell you combination of lens. इसमें क्या होगा? So don't worry, right? Now I am going to talk about this. अभी ये topics complete हो चुका है, right student? So this is, now I am going to talk you power of the what? Equivalent. So यहाँ पे क्या आएंगे? P equivalent जो आएंगे, this is what student? This is 1 upon F equivalent. And here is what? Two lens. More than 2 भी हो सकता है. So आप F equivalent जो निकालोगे, this is what? 1 upon F1 plus 1 upon F2 and what? So on. So this is a combination. किसी भी मान लो इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ लेंस जो कि एक साथ कंबाइन है, उनका पावर हाउ टू फाइंड? सिमिलरली सिंपल क्या होगा? पावर इक्विवेलेंट 1 अपॉन इक्विवेलेंट 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 एंड सो ऑन. सो एक न्यूमेरिकल तो बनता है बॉस, राइट? सो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट. आई विल टेल न्यूमेरिकल ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. गुड टू एवरीवन. डू हार्ड वर्क and earn your knowledge. This will help you a lot in JEE, means advanced, Neet, as well as 12th class. So what is the question? This is your question, right student? Just say okay. So student, this is water. Refractive index of water 4 upon 3. This is 2. Refractive index 1. इन दोनों सरफेसेस का जो रेडियस है, दिस इज कॉमन, विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. व्हाट इज योर क्वेश्चन? फाइंड P equivalent. राइट, आपको P इक्विवेलेंट निकालना है. तो व्हाट इज स्टेप 1? एज यूजुअल ऑल ऑफ यू नो
कि स्टेप 1 से ही हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, गिवन डाटा, यू हैव टू नोट इट डाउन। सो व्हाट इज़ द गिवन डाटा? अगर गिवन डाटा की बात करें तो रेडियस कॉमन फॉर बोथ द सर्फेसेज विच इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर which is equals to 4/3, what student, which is equals to 4/3, and refractive index of a lens which is equals to 2, and refractive index of this lens, right, this is equals to what, basically 1. अब आप सबका इंडिविजुअली f1 f2, this is lens number 1, lens number 2 and lens number 3. So now I am going to start further solution of this question, right बच्चे? Don't worry, if you have any doubt, immediately all of you know there is option to comment 1/f1. फर्स्ट देखो यहाँ पे एक सिंपल फंडा वो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आप जब फोकल लेंथ निकालो ना तो आप एक बात ये डिसाइड कर लेना कि रेज कहाँ से आ रही है। बेसिकली स्टूडेंट मैं यहाँ ये डिसाइड कर रहा हूँ कि आपका रेज यूँ आ रही है, रेज फ्रॉम व्हाट, अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब रे यूँ क्रॉस करेगी। तो इसी स्टैंडर्ड को मान करके ही मैं क्वेश्चंस करूँगा, राइट। सो जस्ट से दिस इज द व्हाट, रे यूँ आ रही है, ध्यान रखें रे यूँ आ रही है। इनफैक्ट मैं शो ऑफ कर देता हूँ। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज द व्हाट, कर्व सरफेसेस। ओके फाइन। सो अपन अब निकालेंगे इनकी रेडियस क्या गिवन है, रेडियस विच इज 20 सेंटीमीटर और म्यू 4/3. So 1/f1 mu L upon mu s. I'm going to use here what, lens maker formula, minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. Fine. So this is what, 1/f1 mu L 4/3 सराउंडिंग का 1 माइनस 1/r1, रे इस पे आ रही है और स्ट्रेट लाइन की जो रेडियस होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो दिस विल बिकम व्हाट, बेसिकली 1/इनफाइनाइट गेट्स 0, बट मैं बाद में करूँगा उसको। माइनस, देखो मैंने सिखाया था अगर रे यूँ आ रही है ना, गड्ढे वाले सरफेस को अगर क्रॉस कर रही है तो दिस इज़ व्हाट, बेसिकली इसकी रेडियस नेगेटिव होगी। अगर रे यूँ आती तो ये पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव है। This is what, minus of -20. So this will get positive, and 1/infinity, all of you know any number upon infinity goes to 0. So 1/f1 which is equals to 4/3 minus 1, 0 plus 1/20. So 1/f1 4 minus 3/3 into 1/20, 4 minus 3 1. So basically you can say 1/f1 which is equals to 1/60 centimeter. So this is what, 1/f1. Now I'll find f2 and f3. So take a screenshot, I need a space. Done, good, well done. So now I'm going to make another lens part. So this is you can see student biconcave, right, biconcave रेज यूँ आ रही, उसको स्वैप करना बिल्कुल ज़रूरी है। एस रे कमिंग लाइक दिस, ओके। एंड नेक्स्ट इज व्हाट स्टूडेंट, दिस इज 20 सेंटीमीटर and this is what, 2. So 1/, again same step 1 मैं यहाँ अडॉप्ट करता हूँ, given radius and mu of the what, not water, a lens का होगा जो कि क्या है, कॉमन है, mu of lens which is equals to what, basically 2 student. So we can see 1/f2 mu L ना, mu L upon mu S minus 1/r1 minus 1/r2. So 1/f2 mu L
mu L is what? Basically 2 upon 1 minus 1 and here is more things. देखो ध्यान से, राइट अब जब रेज यूँ आ रही है ना तो दिस इज़ व्हाट, एक गड्ढा वाला सरफेस है, ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, राइट. सो दिस इज़ व्हाट 1 अपॉन 20 विथ व्हाट? माइनस साइन एंड माइनस, ये क्या होगा? दिस इज़ व्हाट रिमेन्स पॉजिटिव वाला, राइट स्टूडेंट. सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली 1 अपॉन 20. अब ये तो माइनस है और वो भी माइनस है, ओके. सो दिस इज़ 1 अपॉन f2, दिस इज़ 2 माइनस 1 1 एंड दिस इज़ व्हाट, ये आ गया -1 और -1 एंड टेक एलसीएम, दिस इज़ व्हाट बेसिकली 20. 1 upon f2 which is equals to minus 1 upon 10, right? Because 2 tens are 20. 2 tens are what? Basically 20. 1 upon f2. So student, what is your last one? This is what? जैसे कि अपन नोट कर लो 1 upon f1 जो आया था वो क्या था? 1 upon 60. 1 upon f2, this is what? Minus 1 upon 10. And in last basically you can do one thing student, क्या निकालना आपको? f3 निकालना होगा ना लास्ट लेंस का. So this is again, this is by plano convex lens, this is what? 1. Okay, so range is coming like that, same. So you can find 1 upon f3 which is equals to formula mu L upon mu S. I think बच्चे अब तो आप सीख चुके हैं formula mu L upon mu S minus 1 upon R1 minus 1 upon R2. So this is what 1 upon f3. Mu L is what? Basically refractive index is 1. So 1 upon 1 minus 1 and this is what? देखो स्ट्रेट लाइन की क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. दिस इज व्हाट बेसिकली इनफाइनाइट, राइट स्टूडेंट. और ये तो अपन को मालूम है रेडियस, दिस इज 20 सेंटीमीटर. सो 1 अपॉन इनफाइनाइट एंड दिस इज व्हाट रिमेन्स नेगेटिव बिकॉज यूं आ रही है लाइट ना, लाइट यूं. ओके, सो दिस इज व्हाट माइनस 20. Okay, so what student basically 1 upon f3 which is equals to what? 1 minus 1 goes to 0 and any terms by infinity goes to 0 and this is what? Minus minus gets plus, this is 1 upon 20. So 1 upon f3 which is equals to 0. Okay, so basically this is your target which you have already find. So what is your last step? You have to find F equivalent. So take a screenshot. Good, well done. So next student, यहाँ क्या करोगे? अब जब F equivalent निकालेंगे, so basically you have to find power. So power requirement 1 upon F equivalent, right? So 1 upon F equivalent, this gets 1 upon F1 plus 1 upon F2 plus 1 upon f3, right student. So this is what 1 power which is equals to 1 upon f equivalent 1 upon f1 की वैल्यू कितनी है? 1 upon 60. okay, and this is minus 1 upon 10. so minus 1 upon 10 and 1 of 3, this is what basically 0. simple. So P equivalent is equals to 1 upon F equivalent. 60 and 10 LCM remains what? क्या आएगा? 60. तो this is 1 and 10 6 minus 6. okay, so P is equals to 1 upon F equivalent minus 5 upon 60, right student. So P is equals to 1 upon F equivalent which is equals to minus 1 upon 12. So you can say power is equals to minus 12 diopter. वो रिवर्स कर जाएंगे ना, वो बेसिकली रिवर्स कर जाएंगे, राइट. सो दिस इज या आप 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट तो निकालना, सॉरी ज़रूरत ही नहीं इसकी ना. तो आपका जो पावर आ गया ना बेसिकली दिस इज व्हाट माइनस 1 अपॉन 12 डायप्टर, बिकॉज हमें तो पी इक्विवेलेंट ही चाहिए ना. 1 अपॉन वही तो आंसर होगा आपका. सो दिस इज व्हाट आपका आंसर हो गया.
चलो, सो गेट्स कंप्लीटेड। लास्ट में जो आपका सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज, बहुत काम का टॉपिक है। चलो, इसमें इसलिए टाइम लगा ना बिकॉज ये बहुत लेंदी टाइप का होता है, न्यूमेरिकल में बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली पावर, जो कि 1/f इक्विवेलेंट ही आपका आंसर होता है। सो लास्ट है, डोंट वरी, थोड़ा वीडियो लंबा होगा इसीलिए बिकॉज मैं चीज़ों को बिल्कुल आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ईजी वे में। सो लास्ट इज़ व्हाट, सिल्वरिंग silvering of lenses, right? Just say this is what spherical part, जिसको कि अपन क्या करेंगे यहाँ से सिल्वर्ड कर देंगे, राइट स्टूडेंट? दिस इज व्हाट गेट्स सिल्वर्ड, फाइन। ओके, जब आप इसे सिल्वर्ड करोगे तो बेसिकली आपका इसका एक रे डायग्राम बनेगा, राइट? दिस इज ए सिल्वर्ड पार्ट। तो इनके जो फॉर्मूला आएंगे ना, पी इक्विवेलेंट, वो क्या आएगा, ट्वाइस टाइम। देखो ये जब रे यहाँ जाएगी, एक बार यहाँ से रिफ्रैक्शन, एक बार यहाँ से, और मिरर के नीचे वो वापस से रिफ्लेक्ट कर देगा इसको, राइट? सो स्टूडेंट क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। और पी इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/f इक्विवेलेंट। बट ये क्या बन चुका मिरर ना, ये आएंगे माइनस के साथ, राइट? -1/f इक्विवेलेंट। ऐसा इसीलिए बिकॉज मैं आपको जस्ट पहले बोला हूँ कि पावर जो होता है मिरर का वो -1/f होता है। ये मिरर का ही तो निकालेंगे बेसिकली, राइट? सो दिस इज व्हाट पावर इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/f इक्विवेलेंट आएगा ना। सो दिस इज व्हाट ट्वाइस PL आएगा ना, P इक्विवेलेंट, तो 1/f1, बिकॉज ये क्या 1/f होता है पावर ऑफ द लेंस, 1/f2 एंड सो ऑन, -1/f, राइट? चलो, अब माइनस कॉमन अगर आप ले लेते हो तो आपका जो 1/f इक्विवेलेंट आएगा ना, 1/fm, बेसिकली मिरर कहते हैं इस फोकल लेंथ को, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, माइनस ट्वाइस ऑफ व्हाट स्टूडेंट, 1/f1 प्लस 1/f2। दिस इज मोस्ट यूजफुल फार्मूला, दिस इज मोस्ट यूजफुल फार्मूला। ध्यान रखिए सिल्वरिंग ऑफ मिरर के लिए इतना काम का है, बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस, राइट? चलो, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। एक न्यूमेरिकल तो बनता है बॉस, बिकॉज एक बहुत काम का है, और यूजुअली यहाँ पे FM क्या वर्ड्स हैं वो मैं बताऊँगा आपको, सो डोंट वरी। चलो आ जाओ, ईजी क्वेश्चंस करते हैं ना। चलो लेट्स स्टार्ट। सो मान लो दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ टुडे लेक्चर, एंड जस्ट से स्टूडेंट correct, and this is what silvered part, radius which is 20 centimeter, okay, and here is what, यहाँ पे स्टूडेंट वही सेम वाटर फीड है जो कि आपका 4/3 है, सेम निकालेंगे ना। देखो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड बेसिकली फाइंड नेट फोर्स ऑफ गिवन फिगर। आपको F इक्विवेलेंट निकालना है स्टूडेंट। सो कुछ नहीं करना है, स्टेप 1 एज यूजुअल अपन स्टेप से ही स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज स्टेप नंबर 1, म्यू ऑफ द वाटर जो कि आपको गिवन है 4/3, एंड व्हाट इज़ रेडियस ऑफ द लेंस जो कि आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। और ये मिरर है ना, तो मिरर का जो फोकल लेंथ होगा ना, दिस इज वॉट 10 सेंटीमीटर। ऐसा इसीलिए मैं बोला F = R/2, बिकॉज हेयर आई एम कंसिडरिंग थीटा इज स्मॉल। ध्यान रखें, ऐसा नहीं कह सकता मैं थीटा स्मॉल है तो मैंने F की वैल्यू को R/2 इस्तेमाल किया है। चलो, सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई बेसिकली फार्मूला, राइट स्टूडेंट? सो दिस इज स्टेप नंबर 2। वो क्या है आपका स्टेप नंबर 2? अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज स्टेप नंबर 2। अलग अलग सबका F1 F2 निकालो बिकॉज आपको F इक्विवेलेंट निकालनी है। सो अगेन आई एम कंसिडरिंग कि देखो मैं यहाँ ये मान रहा हूँ कि रे यूँ आ रही है, राइट? सो स्टूडेंट आप यहाँ पे यूँ डायग्राम बना दो, रे को भी शो करना चाहो तो कर दो। इनकी जो रेडियस गिवन है वो क्या है 20 सेंटीमीटर। सो 1/f1 which is equals to μl
upon mu s minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. I am using here length maker formula, right student? So 1 upon f1 4 upon 3 minus 1 r1 gets infinity, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर जो किसी भी स्ट्रेट सरफेस है स्ट्रेट लाइन का वो इन्फिनिटी होता है। माइनस आर टू गेट्स नेगेटिव ना, रे यूँ आ रही है तो माइनस एंड माइनस गेट्स व्हाट बेसिकली प्लस, राइट। तो बेसिकली क्या आ गया स्टूडेंट, ये तो जीरो हो गया, 4 माइनस 3 दिस इज 1/3। सो 1 अपॉन f1 गेट्स 1 अपॉन 60, 1 अपॉन 60। ओके, सो टेक अ स्क्रीन शॉट, मैं यहाँ लिख लेता हूँ बिकॉज मुझे नीड इसकी होगी। This is what 1 upon 60 सेंटीमीटर। यूनिट्स इज मैंडेटरी स्टूडेंट, ऐसे बिल्कुल मत बोलना वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। चलो क्या स्टेप 2, नाउ आई एम गोइंग टू मूविंग अहेड। स्टेप 2 का ही पार्ट है जो क्या है आपका, बाई कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज व्हाट स्टूडेंट, बाई कॉन्वेक्स लेंस, राइट। सो यहाँ पे क्या गिवन है, दिस इज 20 सेंटीमीटर एंड दिस इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन ने नहीं दिया ना, चलो ये मान लेते हैं कि A2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विच इज इक्वल्स टू 2। सो डोंट वरी, अगर कोई डाटा भूल गया है ना या डाटा नहीं दे पाया तो वो अल्टीमेटली क्वेश्चंस में आ जाएंगे, बगैर उसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। दिस इज व्हाट, और रे इज व्हाट लाइक दैट। सो यहाँ पे अपन 1 अपॉन f2 निकालेंगे। स्टूडेंट आई थिंक बच्चे अब तक तो फॉर्मूला लर्न कर लिया होगा डेफिनेटली। सो दिस इज व्हाट, ए आ गया म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, फाइन। सो 1 अपॉन f2 दिस इज 2 अपॉन 1 माइनस 1 r1 नेगेटिव ना, बिकॉज यूँ गड्ढे वाले हमें सिंपल, बहुत सिंपल ट्रिक है, इस पे आ रहा तो दिस इज व्हाट नेगेटिव। सो क्या स्टूडेंट, दिस इज माइनस 1 अपॉन 20 बिकॉज रेडियस कॉमन है एंड दिस इज व्हाट माइनस और माइनस 1 ये तो प्लस होगा ना, बिकॉज रे यूँ इस पे आ रही है, इस पे मतलब उभरा हुआ सरफेस पे रेज आ रही हो तो प्लस, गड्ढे में सिंपल ट्रिक, राइट। दिस इज व्हाट नेगेटिव, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस 2/20 माइनस 1/10 एंड दिस इज व्हाट 2 माइनस 1 1। तो आपका 1 अपॉन f2 की जो वैल्यू आ गया ना, कितना आ गया बच्चा, माइनस 1 अपॉन 10। सो हेयर आई एम राइटिंग 1 अपॉन f2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 10। चलो अब ये तो है नहीं लेंस, तो फाइनली आपको निकालना क्या है, एफ इक्विवेलेंट, जो कि स्टेप नंबर 3। ये क्या है स्टूडेंट, दिस इज बेसिकली यू कैन से स्टेप नंबर 3, 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ एम माइनस ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 एंड सो ऑन। बिकॉज यहाँ तो 2 ही है और f1 f2 रिमेंबर इसको हम साइन के साथ में ही लें, राइट, कंसिडर विद द साइन। सो 1 अपॉन f equivalent 1 upon fm means what, fm already you have find now, this is 10 centimeter, 1 upon 10 minus 2, 1 upon f1 you have already find out 1 upon 60 plus 1 upon f2 minus 1/10, you can write minus 1 upon 10. So this is what, take LCM. So 1 upon f equivalent 1 upon 10 minus 2 and this is what, basically 60. This is 1 minus 6. This is what, basically minus 5 and this is what 1 upon, मैं एक बार सॉल्व करूँ, no need to move direct, minus 2 minus 5/60. So this will get minus 1/12. Minus 1/12 gets what? Plus, you can say plus 2/12 means 1 upon f equivalent which is equals to 1/10 plus 2/12. 2/12 means 1 upon 6. Now check LCM 10 and 6. So क्या होगा, यही कर लेते हैं साथ में, 2
5 जा 10, 2 3 जा 6, तो 2 5 जा 10 3 जा तो 30, राइट. सो इनके एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट, दिस इज व्हाट 30, तो 10 3 जा 30, 3 + 5, 6 5 जा 30 ना, तो 8/30. सो व्हाट इज योर आंसर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टॉप में, आपका जो फाइनल आंसर हो 1/f इक्विवेलेंट 8/30, और यू कैन से 4/15. दिस इज व्हाट सेंटीमीटर. डोंट forget to attach unit. So this is your answer, and this is one short video for what, लेंस इन रे ऑप्टिक्स. कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना. देखो यहाँ बेसिकली क्या है, आपका 1/f इक्विवेलेंट जो आ रखा है, दिस इज 8/30. इफ फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, सो दिस इज व्हाट यू कैन से कन्वर्जिंग लेंस. ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, फोकस लेंथ नेगेटिव हो तो दिस इज डाइवर्जिंग लेंस. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे लेक्चर, one shot on ray optics with tips and trick. Bye bye.